الرحیم الفصل الخامس فی بقیت المناسک فصل خامس بقیت مناسک مناسک یعنی ارکان افعال جو حج کے ہیں ان کے بارے میں، یعنی جو ابھی تک پڑھ چکے ہیں ان کو چھوڑ کے جو باقی بچے ہیں ان کے بارے میں یہ بحث ہے۔ کہہ رہے ہیں فَإِذَا تَحَلَّلَ بِمِنَى، کہ اگر کسی نے کوئی حالت حلم میں آ گیا ہو، حالت حلم میں کیسے آ جائے گا؟ رمی جمرہ عقبہ اور اس کے بعد ذبح اور پھر حلق کرنے کے بعد خوشبو اور عورت کے علاوہ تمام چیزیں حلال ہو جاتی ہیں کہ نہیں ہو جاتی ہیں؟ کہہ رہے ہیں فَإِذَا تَحَلَّلَ بِمِنَى، اگر کوئی حالت حلم میں آ گیا ہو، یعنی اپنے سر کو مڈا چکا ہو میدان مینا میں، مضى لِيَوْمِهِ، تو چلا جائے گا اسی دن یعنی 10 تاریخ کو، او غدیہ یا 11 تاریخ کو، 10 کو یا 11 کو۔ غد کہتے ہیں ٹمارو، تو 10 کے علاوہ کون سا آئے گا؟ 10 کا اگلا دن کون سا ہے؟ 11۔ کر مضى لِيَوْمِهِ یعنی 10 ذی الحج، او غدیہ یا 11 ذی الحج یعنی 10 کے بعد کل۔ ان کان متمتعا، اگر حج کرنے والا حج تمتع کر رہا ہو، ان کان متمتعا، اگر حج تمتع کر رہا ہو۔ فَإِذَا تَحَلَّلَ بِمِنَى، اگر کوئی سر کو مڈا لے میدان مینا میں، مضى لِيَوْمِهِ، تو اسی دن چلا جائے گا خانہ کعبہ، او غدیہ یا اس کے اگلے دن، ان کان متمتعا، اگر اس کر رہا ہو حج تمتع۔ وَيَجُوزُ لِلْقَارِنِ وَالْمُفْرِدِ، اور جائز ہے حج قران اور حج افراد کرنے والے کے لیے طول ذی الحجہ، ذی الحجہ کے پورے مہینے، یعنی اگر کوئی حج قران اور حج افراد کر رہا ہے تو میدان مینا میں ذبح کرنے کے بعد سروں کو ڈالے گا تو کافی ہے، وہ اپنے گھروں کو جا سکتا ہے، کوئی کام ہے بعد میں آ کے وہ پورے ذی الحجہ میں طواف کر سکتا ہے۔ ہاں، اِلَى مَکَّۃَ، کہاں چلا جائے گا؟ یہاں پہ دیکھیں جو اصل جملہ ہے وہ معلوم کیسے ہے؟ فَإِذَا تَحَلَّلَ بِمِنَى مَضَى إِلَى مَکَّةَ لِطَوَافِ الْحَاجِ، یہ جو بیچ میں ڈیش لگا کے دیا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ جملہ اعتراضیہ، ٹھیک ہے؟ اب کب جا سکتا ہے مکہ طواف حج کے لیے؟ کہا لِيَوْمِهِ، اسی دن، او غدیہ یا اگلے دن، ان کان متمتعا، اگر کیا کر رہا ہو؟ وہ حج تمتع کر رہا ہو۔ وَيَجُوزُ لِلْقَارِنِ وَالْمُفْرِدِ، اگر آپ حج قران اور حج افراد کر رہے ہیں اس کے لیے جائز ہے طول ذی الحجہ، پورے ذی الحجہ کے مہینے میں۔ کہاں جائے گا؟ اِلَى مَکَّةَ لِطَوَافِ الْحَجِّ، مکے جائے گا حج کا طواف کرنے کے لیے۔ وَيُصَلِّي رَكَعَتَيْهِ، اور 2 رکعت کیا کرے گا؟ نماز پڑھے گا۔ وَيُصَلِّي، اور نماز پڑھے گا، رَكَعَتَيْهِ یعنی رکعتي الطواف، 2 رکعت نماز طواف پڑھے گا۔ ثم يسعى للحج، پھر سعی کرے گا حج کے لیے۔ اور سعی کہاں کی جاتی ہے؟ رضا، سعی کہاں کی جاتی ہے؟ صفا مروہ کے درمیان، صفا اور مروہ کے درمیان، احسنت۔ ثم يطوف للنساء، اس کے بعد کیا کرے گا؟ طواف
निसा करेगा, सुम्मा यतूफो फिर तवाफ करेगा सई के बाद, लिन निसाए यानी तवाफुन निसा, कुल्लुन ज़ालिका सबआन सबको कितनी मर्तबा करेगा? 7 मर्तबा। क्या है? कह रहे हैं तवाफ़े हज 7 मर्तबा, सई हज 7 मर्तबा, तवाफुन निसा भी 7 मर्तबा, कुल्लु ज़ालिका सबआन सबको क्या करेगा? 7 मर्तबा। सुम्मा युसल्ली रकअतै फिर 2 रकअत नमाज पढ़ेगा किसकी? तवाफुन निसा की, यानी तवाफ के साथ साथ हमें क्या करना है? 2 रकअत नमाज पढ़नी है। अच्छा, ये नमाज मुस्तहब है कि नमाज वाजिब है? नमाज वाजिब है। अहसंत। सुम्मा युसल्ली रकअतै फिर 2 रकअत नमाज पढ़े। रकअतै जब कहा यानी तवाफुन निसा की नमाज। वसिफतु ज़ालिका कैसे पढ़ेगा? कहां पढ़ेगा? कह रहे वसिफतु ज़ालिका उसकी सिफात, कमा कुल्ना जैसा कि हमने कहा, फी अफ़आलिल उम्रा उम्रे के अफ़आल में, यानी जैसा पहले हम उम्रे के उसमें बता चुके हैं कि तवाफ कैसे करेगा, ठीक है, साई कैसे करेगा, उसी तरह से हज की तवाफ और हज के साई और नमाज को बजा लाएगा। व तवाफुन निसाई वाजिबुन और तवाफुन निसा वाजिब है, अला कुल्ले हाजिन हर हाजी पर, चाहे वो मर्द हो या औरत, चाहे बड़ा हो या छोटा, सबको क्या करना होगा? तवाफुन निसा करना होगा। तो इतना देखें, इतना क्लियर है। तो एक मर्तबा या फिर से दोहरा दूं? सकीना एक मर्तबा और बता दीजिए ना। भले आप चलिए ठीक है, फिर बता देते हैं। कह रहे हैं फ़इदा तहल्लला, हालत हिल्म कब आता है इंसान? सर मुड़ाने के बाद। फ़इदा तहल्लला यानी जब सर मुड़ाले, बेमिना मैदान मिना में, मदा तो चला जाए, लियौमिही उसी दिन, औ गदिही या अगले दिन। गद कहते हैं अरबी में टुमारो को, यानी कल, यानी उसके दूसरे दिन, यानी 11 तारीख को। इनकाना मुतमत्तिअन अगर हज करने वाला हज्जे तमत्तु कर रहा हो, वयजूज़ु लिलक़ारिन वल मुफ़रिद और जायज है हज्जे क़िरान और हज्जे इफ़राद करने वालों के लिए, तूल ज़िलहिज्जा कि वो तवाफ के लिए पूरे ज़िलहिज्जा महीने में कभी भी जाएं। हमें कहां जाना है सर मुड़ाने के बाद? इला मक्का। कहां जाएंगे? मक्के, ठीक है। लितवाफिल हज, यहां मक्के से मुराद शहर मक्का नहीं है, बल्कि क्या मुराद है? खाने काबा। लितवाफिल हज्जे हज के तवाफ के लिए। जब हज के तवाफ से फारिग हो जाएंगे तो कहां जाएंगे? 2 रकअत नमाज पढ़ेंगे। वो युसल्ली रकअतैही 2 रकअत नमाज पढ़ेंगे, यानी रकअतै अल हज तवाफिल हज, जो हज का तवाफ किया है उसके लिए। सुम्मा यस्आ फिर हम करेंगे साई सफा और मरवा के दरमियान, लिल हज हज के लिए। इससे पहले जो साई की थी वो किसके लिए थी? उम्रे के लिए थी। अब किसके लिए साई करेंगे? हज के लिए। सुम्मा यतूफुन निसाओ फिर तवाफुन निसा करेगा, ठीक है। कुल्लु ज़ालिका सबआन और सबको 7 मर्तबा अंजाम देगा, यानी तवाफ़े हज को 7 मर्तबा, साये सफा व मरवा को 7 मर्तबा और तवाफुन निसा को 7 मर्तबा। सुम्मा युसल्ली रकअतै फिर उसकी 2 रकअत नमाज पढ़ेगा।
वसिफत ज़ालिका, और हर चीज की खुसूसियात और डिटेल्स, कमा कुलना, जैसा हमने कहा, फी अफ़आलिल उमरा, उम्रे के अफ़आल में, यानी जैसा हमने उम्रे के काम में आपको बताया है उसी तरह से आप तवाफ करेंगे, उसी तरह से आप मकाम इब्राहिम के पीछे नमाज पढ़ेंगे, सई सफा व मरवा करेंगे, और तवाफुन निसा उसमें था कि नहीं था? किसको याद है? हाँ जनाब। नहीं, कहां था? उम्रे में कहां था? उम्रे में नहीं है। उम्रे में नहीं है, लेकिन हाँ जो हज क़िरान और हज इफराद कर रहे हैं उनके लिए क्या है? उम्रे में भी है और हज में भी है। याद आया कि नहीं याद आया? फिर से जाके पीछे देखिएगा, हज इफराद और हज क़िरान करने वालों के लिए दोनों में तवाफ है, तवाफुन निसा। ठीक है। मेहदी हुसैन नहीं ना आए हैं? आगा जो 2 रकात नमाज पढ़नी है ये 7 बार पढ़नी है? नहीं, 7 बार नहीं पढ़नी है। 7 बार आप तवाफ कर लेना, 7 चक्कर आपने लगा लिए, उसके बाद पढ़नी है बस 2 रकात? बस 2 रकात नमाज। जी हाँ। हाँ, यानी एक बार का तवाफ जो है ना, एक तवाफ तब माना जाएगा जब आप 7 चक्कर मुकम्मल कर लें। कैसे जोहर की नमाज है, इशा की नमाज है, इशा की नमाज आपने पढ़ी तो 1 रकत में नहीं ना होगी, 4 ही आपको पढ़नी है। जी। उसी तरह से तवाफ यानी 7 बार ही आपको चक्कर लगाएंगी, तब जाके वो एक तवाफ मुकम्मल होगा। तो आगा ये दे रखा है ना कि सबको 7-7 मर्तबा करें? हाँ, तो सबको का मतलब ये तवाफे हज 7 मर्तबा, 7 चक्कर आप लगेंगे, 7 यानी तवाफे हज 7 चक्कर का तवाफ एक तवाफ होगा। हज का तवाफ आपको करना है ना, तो खाने काबा के 7 चक्कर आपको, हजर अस्वद से लेके हजर अस्वद तक एक चक्कर, तो एक तवाफ नहीं होगा। उस तरह से 7 जब 7 राउंड आप लगा लेंगी तब जाके एक तवाफ मुकम्मल होगा। और एक तवाफ मुकम्मल करके मकाम इब्राहिम में 2 रकत नमाज पढ़ेंगे। फिर हम चले जाएंगे सई करने के लिए, सफा और मरवा के दरमियान 7 मरतबा सई करेंगे। फिर वापस आएंगे खाने काबा में, फिर तवाफुन निसा करेंगे उसी तरह से जैसे पहले बताया गया, और 2 रकत उसकी मकाम इब्राहिम में नमाज पढ़ेंगे। क्लियर है जनाब? सफा और मरवा के दरमियान जो सही करेंगे, सफा से मरवा तक जाएंगे, एक होगा या सफा से सफा तक एक होगा? याद नहीं आ रहा। सफा से मरवा एक होगा, फिर वहां से यहाँ आएंगे तो 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा। हाँ जी जी। वो तो देखना पड़ेगा, दोहराना होगा सब, तब जाके याद आएगा। कह रहे फईदा फरिगा, तो जब फारिग हो जाए, मिन हादिहिल मनासिकी, इन मनासिक से यानी इन अफ़आल से, तब क्या करना है? यानी आप खाने काबा गए, सर मुड़ाने के बाद चले गए खाने काबा में, जाके आपने तवाफ़े हज किया, 2 रकत नमाज पढ़ी, फिर चले गए सई की, सफा और मरवा की, फिर आए तवाफ़ुन निसा किया, 2 रकत नमाज पढ़ी। अब कहां आ जाएंगे? होटल चले जाएंगे? कहा नहीं, रजा इला मिना। कहां से गए थे आप? मिना से वापस कहां चले जाएंगे? मिना में। वबात बिहा, और वहीं रात गुजारेंगे। लैलतई हादी अशर वस्तानी अशर, 11 की रात और 12 की रात, यानी 10 की शाम तक अगर आप तमाम अरकान से फारिग हुए, पूरी रात आप कहां रहेंगे? मैदान मिना में। पूरे दिन कहां रहेंगे? मैदान मिना में। पूरी रात फिर कहां गुजारेंगे? मैदान मिना में। पूरे दिन कहां रहेंगे? मैदान मिना में। उसके बाद आप निकल सकते हैं, आपको इजाजत है। फईदा फरिगा मिन हादिहिल मनासिक, तो जब इंसान इन मनासिक से फारिग हो जाए, रजा इला मिना, मैदान मिना की तरफ पलट आएगा। वबात बिहा, और वहां क्या करेगा? रात गुजारेगा। देखिए बाता आ गया ना यहाँ पे,
बाता किसमें है? ये अफाले नाक़िसा में। लैलतई, इसको क्या पढ़ेंगे? तस्निया पढ़ेंगे। लैलतैने था, लैलतई अल-हादी अशर व सानिया अशर, ठीक है, 11 और 12 की रात। मिन ज़िलहिज्जा, किसी भी महीने की नहीं, ज़िलहिज्जा महीने की। वाजिबन, और ये रात का गुजारना वहां मुस्तहब है कि वाजिब है? अब इन 2 दिन, हाँ, इन 2 दिन में कोई काम है कि नहीं कि खाली मैदान में सोने जाएगा या व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम चलाने जाएगा? कह रहे वो यरमी फिल यौमैन, जो 2 दिन बचेंगे यानी जो 11 का दिन और 12 का दिन, उसमें आप क्या करेंगे? यरमी फिल यौमैनी अल जमार सलास, तीनों शैतानों को आप क्या करेंगे? पत्थर मारेंगे। कुल्ल जमरतिन फी कुल्ल यौमिन, हर पत्थर को हर दिन बेसबए हुसैयातिन, ठीक है, 7 कंकरियों से। कह रहे हैं यानी अब 3 पत्थर है ना, यरमी फिल यौमैन 2 दिनों में मारेगा, अलजिमार सलास तीनों पत्थरों को, कुल्ल जमरतिन हर पत्थर को, फी कुल्ल यौमिन हर दिन यानी 11 और 12 का दिन, बेसबए हुसैयातिन 7 कंकरियों से। अब कहां से शुरुआत करनी है? चाहे जिस पत्थर को मार दे, कहा नहीं, यब्दऊ बिल जमरतिल ऊला, शुरू करेगा पहले जमरे से, वयरमीहा अन यसारिहा, और उसको मारेगा उसके बाईं जानिब आकर, यानी जब फेंक रहा हो तो बाईं जानिब खड़ा हो, इस तरीके से कि उसका चेहरा किधर हो जाए? मक्का मुकर्रमा की तरफ हो जाए, यानी खाने काबा की तरफ हो जाए। मुकब्बिरान कैसे मारना है? तकबीर कहते हुए। 1 नंबर के हाशिए पे आते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं। मुकब्बिरान सूरतहु, कैसे बोलना है हमें? अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अला मा हदाना वल्हम्दुलिल्लाहि अला मा औलाना वरज़क़ना मिन बहीमतिल अनआम। ये दुआ जो हम भी पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है, नमाज के बाद इनका पढ़ना क्या है? मुस्तहब है। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अला मा हदाना वल्हम्दुलिल्लाहि अला मा औलाना वरज़क़ना मिन बहीमतिल अनआम। और इसी तरह की दुआ मिलती जुलती व मिन बहीमतिल अनआम उसमें नहीं आता है, ईद उल फित्र में भी पढ़ने के लिए आती है। तो इस तकबीर को इंसान बुलंद करेगा, और ये नहीं पढ़ पा रहा है तो क्या बोलेगा? खाली अल्लाहु अकबर। दाइयन, यानी जो दुआएं अगर वारिद हैं अइम्मा से, उन दुआओं को क्या करेगा? पढ़ेगा। सुम्मा सानियत कदालिक, फिर उसी तरह से दूसरे वाले को मारेगा, यानी बाईं जानिब आके। सुम्मा सालिसा, फिर तीसरे को मारेगा। अब कह रहे वाला नकसा, अगर उल्टा कर दे, नकसा यानी आकाशा, के पहले तीसरे को मारे, फिर दूसरे को, फिर पहले को, यानी दूसरे साइड से आपने एंट्री ली। आदा अलामा यहसलु माहु तरतीब, तो आप इयादा करेंगे इस तरीके से कि तरतीब आपको हासिल हो जाए, यानी उसी तरह से आपको मारना है हर हाल में कि पहले को, दूसरे को, तीसरे को। वहां कोई ना कोई ऐसी अलामत होगी कि एक छोटा होगा, एक उससे बड़ा होगा, एक सबसे बड़ा होगा। वाज़ेह? अब देखिए कब मारेगा? जब चाहे तब मार देगा। वक़्तुर रमी मा बैन तुलूइ शम्स इला गुरूबिहा, इन पत्थरों को मारने का वक्त तुलूए शम्स से गुरूबे शम्स तक है, यानी इंसान रात में चाहे मार ले कि भीड़ वगैरह रहती है, नहीं रहती, सुकून से जाएगा मार लेगा, तो क्या मार सकता है? नहीं मार सकता। कह रहे वक़्तुर रमी, मारने का वक्त, कंकरी फेंकने का वक्त, मा बैन तुलूए शम्स, तुलूए शम्स इला गुरूबिहा, यानी गुरूबे शम्स, तुलूए शम्स से गुरूबे शम्स तक है।
ولا يجوز الرمی لیلان، لیکن رات میں رمی کرنا جائز نہیں ہے سوائے معذور کے جو کسی وجہ سے دن میں نہ مار سکتا ہو. اور انشاءاللہ باقی اس کو کل پڑھا جائے گا. تو ابھی جو ہم نے پڑھا اس میں مطلب واضح ہوا، ساری باتیں مطلب واضح ہے، مسائل واضح ہیں سب کو. جی جی آقا چلیے تو واضح. پھر یہیں پہ اتفاق کرتے ہیں انشاءاللہ. ولا يجوز الرمی لیلا یہاں سے کل پڑھیں گے. والحمدللہ رب العالمین.